Okay, today we will do chapter 6 triangles. Yes. Okay, and basically this chapter pertains to similarity of the triangles. Yes. In class 9 you had studied about some congruent shapes and congruent triangles also. Okay. In class 10th we will study about the similarity of the polygons, similarity of the triangles, and or maybe some other figure, but basically chapter is pertain to the triangles. So what is the introduction? Basically similar figure. What are the similar figure? In book we will study as per the book also, but in concept or in short what we can say, the figure which are similar means looking like a same but not necessarily having the same dimension. ठीक है, that will be the similar figure. Means geometrical figure कुछ भी हो सकती है वो. ठीक है, geometrical figure have the same shape like this book. One is another book. ठीक है, this is another book. ठीक है, shape is same, size is different. Rectangle है rectangle है. ठीक है, but size is different. So in this case what we are saying, shape are same but size are the different. Not necessarily the same size हमने लिखा इसमें. ठीक है, are known as the similar figure. अगर आप ये देखें कि इनको एक स्क्वायर को कंसीडर करें कि this is a small square, this is also the bigger square. So they are similar because both are square. ठीक है, but they are not congruent. In case of the congruency क्या होता है? Introduction to congruent figures में क्या होता है कि they must be of the same shape and the same size. There is a basic difference. There will be the same size and same shape, but here in similarity shape is same, size is different. Yes, sir. So if we consider it as a rectangle, Yes, sir. there are the two rectangles. They are the rectangle, same shape, and then they are the different size, so they are similar. But if we consider it as a rectangle and at a square, Yes, sir. if it is a rectangle and it is a square, are they similar? No. No, they will not be similar because their shape is also different. Yes, sir. Size is different, that is okay, but shape is also different. Yes, sir. So they will not be the similar. If I will say it is a rectangle and it is a square, Yes, sir. ठीक है. If I will say both are rectangle, they become similar. Yes, sir. ठीक है. If I say कि both are square, having the dimension same, a, they become the congruent also. Yes, sir. And similar also. Yes. In that case they become a congruent and similar also. Yes, sir. ठीक है. Similarly if you consider the circle, Yes, sir. they both are the circle but radius are different. Yes, sir. ठीक है. So they are similar but not congruent. Yes. If you consider two triangles, triangles considered in a polygon also. What is the definition of the polygon? Polygon are the shapes which have minimum 3 sides or more than 3 sides. And not crossing to each other. Yes. That is condition. Right? Side मतलब 3 sides, more than 3 sides, but not crossing to each other. Yes, sir. ठीक है. So any polygons क्या होते हैं हमारे? Any closed geometrical shape, कोई भी geometrical shape आप consider करें, consisting a set of line segments. Line segments उसके अंदर होंगे. ठीक है, connected with each other in such a way that no two segment crosses each other. Yes, sir. ठीक है, that time that is known as the polygons. Maybe square, maybe rectangle, maybe trapezium, maybe rhombus, or maybe the pentagon, whatever. So if you consider the two triangles, both are, we are saying both are triangle. Yes. So that they become similar. Yes, sir. ठीक है. If we identify further, then we will think कि whether they are congruent also or not. If you say two line segment having the different length, देखने से लगता है they will not be similar. They will be similar. Yes, sir. Come to the congruent figures का इंट्रोडक्शन पे आते हैं. तो अगर दो जितने भी आपको शेप दी हैं या फिगर्स दे रखी हैं, उनका साइज एंड शेप बोथ आर सेम, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, दे आर द टू स्क्वायर हैविंग द सेम साइज, देन कॉन्ग्रुएंट होंगे. अगर साइज साइड का चेंज कर दिया, एक का 3 एक का 4 कर दिया, या एक का a और एक का b लिख दिया, देन हम इनको क्या कह सकते हैं? दे विल नॉट बी congruent but they will be similar.
सिमिलरली सर्किल अगर कंसीडर करते हैं जैसे ऊपर किया था, देयर रेडियस मस्ट बी सेम, Yes. देन ओनली दे विल बी Congruent. congruent. Triangle we will say the sides must be same. Yes. ठीक है. Line segment if you consider length must be same. Yes. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो ये दो बुक कॉन्ग्रुएंट है, Yes, sir. देख सकते हो, क्योंकि साइड शेप इज सेम Yes, sir. एंड साइज इज आल्सो सेम. Yes, sir. ठीक है. Yes. बट अगर हम ये दो बुक को कंसिडर करते हैं, अगर हम इन दो बुक्स को कंसिडर करते हैं तो कैन वी से दे आर कॉन्ग्रुएंट? No. नो, बट दे आर सिमिलर. Similar. देयर फिगर इज सिमिलर Yes, sir. बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंस. Yes, sir. अभी कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए. Yes, sir. ठीक है. ओके. अब अगर हम एक बात करें कि एक बच्चा है 5 इयर्स का और एक बच्चा है 40, एक आदमी है 40 इयर्स का. Yes, sir. ठीक है. दे विल बी सिमिलर और दे विल बी कॉन्ग्रुएंट. Nothing. बताओ. Nothing. इसमें एक एग्जांपल दिया है, इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल है. They will not be similar Hmm. also, and they will not be congruent also. हाँ, अरे हाँ हाँ सर जा रहे हैं. हाँ बताइए भाई, दे विल बी सिमिलर और नॉट? They will be similar. यस, दे विल बी सिमिलर बट दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. Yes, sir. दे विल बी सिमिलर बिकॉज एक 5 साल का बच्चा है, एक 40 इयर्स का मैन है, उसमें क्या हो गया, ऐसे ही हो गया जैसे सर्किल है, ये 2 रेडियस का 2 सेंटीमीटर का सर्किल है, ये 50 रेडियस का सर्किल हो गया. Yes, sir. बट सर्किल तो है ना. Yes, sir. इट मींस दे विल बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. सिमिलरली अगर ये शेप है यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है, ये कोई अजीब सा शेप है, ये अलग ही शेप है, जिसका शेप आपस में देखने से मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब दे विल नॉट बी सिमिलर. Yes, sir. ठीक है. यहाँ पर 40 इयर्स की एज है, Yes, sir. एक 5 इयर्स की एज है, ये दोनों सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. Yes. सिमिलरली एक फोटोग्राफ लिया हम लोगों ने, Yes, sir. एक फोटोग्राफ ये है, एक सेम साइज का फोटोग्राफ लिया, Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल सेम साइज का, सेम फोटो है उसके अंदर, Yes. तो दोनों क्या हो जाएंगे, Congruent. कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, सिमिलर भी हो जाएंगे. Yes. बट अगर मैंने एक फोटोग्राफ लिया और ये फ्रेम ले लिया यहाँ पर सेम साइज का, बट इसका जो फोटो है अंदर का, मैंने इसको कट कर दिया, ये हमारा मेरा सेम है, Yes, sir. अंदर का पीस सेम है, इसको कट करके सेम फ्रेम में लगा दिया, तो क्या सिचुएशन बनेगी? Similar. सेम रहेगा, फ्रेम सेम रहेगा, लेकिन फोटो मतलब फ्रेम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और फोटो सिमिलर हो जाएगी. हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? Similar. दे विल बी सिमिलर. ठीक है. अब जब बुक में से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि बुक में इन्होंने कैसे दिखाया है. बुक में इन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं दिया, बस मेन अंडरलाइन करने वाली चीजें हैं. कॉन्ग्रुएंट जहां लिखा है, दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज, ये हमने पढ़ दिया. हम बाद में इसको बुक से कर लेंगे. अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा. Yes. ठीक है. इन दो कंसेप्ट की स्टडी करने के बाद व्हाट वी कैन से कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. Yes, sir. ठीक है. सो इसलिए नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. Yes, sir. अब हम आते हैं बेसिक पॉलीगन्स के ऊपर. इंट्रोडक्शन टू सिमिलर पॉलीगन. ठीक है. पॉलीगन की डेफिनेशन हमने देख लिया. हैविंग द लाइन सेगमेंट Yes. connected to each other but not crossing to each other. ठीक है. सो एनी शेप विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीगन. Yes. ठीक है. इनके अंदर एक जनरल क्राइटेरिया, दिस इज जैसे हम किसी भी इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म लिखते हैं ना, Yes. सो दिस इज लाइक ए जनरल फॉर्म, याद रखने के लिए. Yes, sir. देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. Yes, sir. कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए Yes, sir. एंड रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल. Yes, sir. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सिमिलरिटी, जो इस पूरी चैप्टर में स्टडी करेंगे हम लोग. उसी के बेस पर डिफरेंट थ्योरम्स हैं. यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए और रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए. Yes. वी आर सेइंग प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. अगर हमने यहाँ बोल दिया
कि corresponding angles are equal and ratio of their corresponding sides are equal, Yes, sir. then what will say them? They will be congruent. They will become congruent. Concept is clear now? Yes, sir. अगर हम बोल देते हैं दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी. Yes, sir. नाउ मैथमेटिकली आ रहे हैं हम. अभी तक हम लॉजिकल बात कर रहे थे, अब मैथमेटिक की बात कर रहे हैं कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, Yes, sir. देयर रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल. Yes, sir. ठीक है. बट अगर हम इनको बोल देते हैं तो रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो दो कंडीशन मैच करेंगी और ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर देगा. Yes, sir. इसीलिए हमने इनको यहाँ बोला प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. Yes, sir. ठीक है. प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक साइड डिवाइड बाय कोरस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी से 2/3. Yes. अनदर साइड डिवाइड बाय अनदर कोरस्पॉन्डिंग साइड 2/3. Yes, sir. नॉट इक्वल नाउ. ठीक है. एंड थर्ड वन इज आल्सो लाइक दैट. Yes. ठीक. प्रोपोर्शन में है. सिंपलीफाई करने के बाद इनका फ्रैक्शन सेम आता है. Yes. हम वी कांट से कि ए बी इक्वल टू पी क्यू नाउ. अब हम टू द पॉइंट आ जाते हैं. बेसिक जो चैप्टर है हमारा ट्रायंगल के ऊपर. Yes, sir. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल्स, Yes, sir. जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं. इसमें क्या हो जाएगा? इफ टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यू आर, नहीं, द टू ट्रायंगल्स एबीसी पीक्यू आर शैल बी सिमिलर इफ. कंडीशन है दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी, यानी कि ये ट्रायंगल दो, या फिर हमने यहां बना दिया एबीसी एक ट्रायंगल, पीक्यू एक ट्रायंगल, दोनों सिमिलर होंगी. कब? बेसिक कंसेप्ट तो यही है जो पहले बताया था. Yes, sir. अब इनको बस मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख दो. देखिए ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस ए का क्या होगा? इसके अंदर P. Equal. P होगा. Yes, sir. ठीक है. तो A मस्ट बी इक्वल टू P एंगल. एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q. Yes, sir. सो हमने लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल Q. सिमिलरली एंगल C इक्वल टू एंगल R. Yes, सो sir. एंगल C इक्वल टू R. ये कंडीशन 1 हो गई जो पॉलीगन की हमने पढ़ी है. Yes. कंडीशन 2, दिस साइड कोरस्पॉन्ड टू दिस साइड. Yes, sir. सो AB अपॉन PQ. Yes, This side corresponds to this side, sir. BC upon QR, and this side corresponds to this side, so CA upon R. So they must be in proportion. यानी कि ratio must be equal. Yes. ठीक है. So this is condition number 2. Yes, sir. Very important point. जब हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी प्रूव करना चाहेंगे, Yes, sir. तो उनका जो ये लिखने का तरीका है ABC and PQR, that is very important. That is very Important. इम्पोर्टेंट. क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, Yes, sir. बट मैं तो नहीं कहूंगा कि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है. मैथमेटिकली कह सकते हैं कि हम ये कोरस्पॉन्डिंग जो है इसका, वो तो ये बैठता है. हम ये भी तो कह सकते हैं. हम क्या बोल सकते हैं कि इस ए एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, पी नहीं है. Yes, sir. कह सकते हैं ना. Yes, sir. बट किस कंडीशन में कहेंगे? पॉइंट ये आता है, किस कंडीशन में कहेंगे कि ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, Yes, sir. और किस कंडीशन में ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी नहीं है. Yes, sir. वो जो हम कहेंगे बेस्ड ऑन राइटिंग दिस थ्री वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. Yes, sir. रिमेंबर दिस, व्हेन वी आर राइटिंग ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब क्या होगा कि हम ए से स्टार्ट हुए बी तक आए, सी तक चले गए. Yes, sir. जब हमने ट्रायंगल बोला PQR, तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि हम P से स्टार्ट होते हैं, Q तक आते हैं, R तक चले जाते हैं और ये ट्रायंगल कंप्लीट कर देते हैं. Yes, sir. यानी कि दिस A corresponds to this P. Yes, sir. Now understand point. Yes, दिस sir. A, अगर A सबसे पहले लिखा है तो यहाँ जो सबसे पहले होगा वही इसके कोरस्पॉन्डिंग में होगा. इस ट्रायंगल को मैं QPR भी तो बोल सकता हूँ. Yes, sir. I can read this triangle as a QPR और QR. Yes, sir. अगर मैंने इसको यहाँ पर QPR लिख दिया तब मेरा ट्रायंगल A जो एंगल A जो होगा वो कोरस्पॉन्ड किसके होगा? Q के होगा. Yes, sir. बट अभी जब मैंने इसको ABC और PQR लिखा है तो इसलिए एंगल A सिमिलर कोरस्पॉन्ड टू एंगल P, एंगल बीच वाला बीच के, एंगल B फॉर Q, एंगल C कोरस्पॉन्ड टू एंगल R. Yes, sir. अगर ये चेंज करके लिख देता हूं तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी चेंज हो जाएंगे. Yes, sir. हमेशा ध्यान रखना है. पूरी एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Yes, sir. इसी के बेस के ऊपर हम लोग ये रेशो डिसाइड करते हैं. Yes, sir. कैसे? दिस फर्स्ट साइड के लिए रेशो किसकी दिखा रहे हैं? साइड के दिखा रहे हैं. साइड के लिए हमें दो एंड चाहिए. Yes, sir. ठीक है. ए बी, Yes, sir. तो पहले दो लेंगे, Yes, sir. इसके भी पहले दो ले लेंगे. Yes, sir.
ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। Yes, sir. बाद के दो लेंगे, Yes, sir. इसके भी बाद के दो एंड ले लेंगे, Yes, sir. लाइन सेगमेंट ले लिया तो बी सी अपॉन क्यू आर। Yes, sir. इसका लास्ट इसका फर्स्ट, Yes, sir. मतलब लास्ट टू फर्स्ट सी ए। Yes. रिमेंबर हमने ए सी नहीं लिखा, Yes. हमने एक साइक्लिक फॉर्म में लिखा सी ए। हम यहां से चले थे ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर एंड सी ए Yes, sir. आर पी, इसलिए हमने सी ए अपॉन आर पी, इसलिए हमने सी ए, Yes, sir. मतलब ऐसे स्टार्ट हुए हैं ए बी बी सी सी ए, Yes, sir. जब हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया है। इसी तरह से पी क्यू क्यू आर एंड आर पी। अगर मैंने ये लिखने में गलती कर दिया और रेशो मैंने ये लिख दिया Yes, sir. तो टीचर में आस्क कि तुमने गलत किया है और कैंडिडेट द मार्क्स। Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। Yes, sir. बाकी इस बुक के अंदर आपको सिमिलरिटी को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, पूरे 2 पेज भरे हुए हैं, और पेज नंबर 119 के लास्ट में जो हमने यहाँ पढ़ा है अभी वो इन्होंने समझाया है। Yes, sir. ठीक है, अभी कोई डाउट है इन दोनों चीजों में? No, sir. ठीक है, हम